जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड डायरेक्ट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, कल PMS 2023 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी रिदा अहमद. Rida stood 9th in PMS 2023 and she has already been allocated to Foreign Service of Pakistan via CSS 2024 by securing 48th position in Pakistan. तो अभी रिदा के पास चलते हैं, उनके एकेडमिक जर्नी के बारे में पूछती हैं. शी इज़ अ ग्रेजुएट इन लॉ. और उनसे पहले ये पूछते हैं कि लॉ क्यों किया, क्योंकि अमूमी तौर पर गर्ल जो है वो लॉ कर तो लेती है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती. और फिर लॉ के बाद जो है उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम देना क्यों पसंद किया. तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो रिदा, आपको जो है ना PMS के अटेम्प्ट के भी और फॉरेन सर्विस में भी यू गॉट योर टॉप चॉइस. तो पहले मुझे ये बताइएगा कि व्हाई लॉ. Sir, law has been a profession of my generations, as I told you before. Generations? Yes, sir. Achha, I'm a fourth generation lawyer. Great, my that's great. great grandfather was one. My grandfather was a judge. My father is a lawyer. Okay. Other than that, sir, the dilemma is that my mother is a doctor. Okay. So and two of my siblings are doctors. Okay. So there is a paradox है. Okay. अब मुझे उसमें से चूज करना था कि मैंने करना क्या है. यानी कि दो फिक्सेशंस थी. Sorry to say this word that mother or father. Yes, and you chose your father profession. And both were sides were adamant कि हमारी साइड चूज करनी है. अच्छा ठीक है. सर मेरा बचपन से एक स्टेटमेंट थी that I did not want to become a doctor. Okay, ठीक है. Very good of you that you know this is a message for all the girls who want to become a doctor, that there is a girl who from the very beginning of her childhood that she was very clear that she did not want to become a doctor. Yes, so your tilt were the tilt of your profession was to your Towards father. Your father, yes, sir. It was. Or I think law, even way more than CSS, law is one of the best things that has happened to me. Okay, all right. Please Yes, elaborate to us. Sir, law is a dynamic field, and especially for women, it is amazing. आप उसको स्टडी करने लगे. Empowering है. Empowering है बहुत ज़्यादा सर. और it's just कि if you are ऑफ द बैकग्राउंड के जहाँ पे आपको सोशल साइंसेस पसंद है, उन्हें पढ़ना पसंद है, स्पेशली फ्रॉम द कल्चरल आउटलुक, तो लॉ इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग एंड इट गिव्स यू एन इनसाइट एंड अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एकेडमिकली एज वेल सर. तो आई बिलीव लॉ वाज द बेस्ट चॉइस. अदर देन दैट सर, मैं लॉ में इसीलिए गई थी बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू सिविल सर्विसेज. ओके. सो मैंने इसलिए लॉ चूज किया था. द कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव, दे आर एक्सीलेंट. And a person with such communication skills is a very good lawyer. So why civil service? Why it was in your mind that why civil service? What was the pull factors in civil service? Sir, as I told you before, I have been inclined towards the social sciences. अच्छा ठीक है. और मुझे सोसाइटी में रहते हुए इधर काम करना, मुझे ये ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती थी. ठीक है. I pursued law for almost like 2 weeks or something. But sir, when I saw, actually this goes back to the story जब मैं स्कूल में थी sir. अच्छा ठीक है. As you said, it was public speaking. जी जी जी. Sir, I've been a public speaker since grade 4. Okay. तो मैं debates में थी, and then in my university I was in moot competitions. Okay. Sir, as I said, I was in public speaking, तो मैं कंडक्ट करती थी जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में. जी बिल्कुल. I used to be the one who used to call people on stage. ठीक है. And when I saw that, I saw that I want to be someone who is being called on stage. Yes, okay, sir. all right. And That's that was inspiration. when the journey started. See, this is how Rida, that we grow yourself as a child. नॉर्मल चाइल्ड के बच्चे की थिंकिंग नहीं है ये. वो देखता है कि अच्छा चीजें कर रही हैं और कि यू गॉट इंस्पायर्ड, कि आपको लगा दैट आई शुड नॉट बी द वन हु इज कॉलिंग, आई शुड बी द वन हु इज बीइंग कॉल्ड. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड देन यू टुक स्टेप एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दैट यू आर सिटिंग हियर. अच्छा, तो आपने ये करना चाहा, तो आपने फौरन ही पहले अटेम्प्ट दे दी. तो आपके अभी PMS में सब्जेक्ट्स क्या थे? सर PMS के सब्जेक्ट्स मेरे सोशल वर्क, पंजाबी एंड पॉलिटिकल साइंस. सोशल वर्क, व्हाई सोशल वर्क? अमूमी तौर पर देखा गया यूजुअली दैट सोशल वर्क इज अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो आपने रिस्क कैसे लिया ये? सर आई वुड कॉल इट रादर एन ईजी चॉइस, क्योंकि सर जब 24 का PMS अनाउंस अभी हुआ था, उसका स्केड्यूल आया था, तो पेपर्स हो रहे थे 24 के CSS के पेपर्स. जी जी एग्जैक्टली. था एक महीना पहले थे. जी जी बिल्कुल. तो उसी टाइम पे अब अप्लाई करना था एंड आई वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. आई डिड नॉट वांट टू स्टडी अ न्यू सब्जेक्ट. मुझे बहुत कहा गया दैट यू शुड स्टडी फिलोसफी एंड स्पेशली फिलोसफी के मुझे बहुत सारे उसके पता थी चीज़ें उसकी. बट मैंने कहा नहीं, मुझे दोबारा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जर्नी आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है एक तरह से. तो सोशल वर्क का मैंने सिलेबस देखा एंड इट केम इन हैंडी, तो आई थॉट कि ये हो जाएगा जल्दी, तो इसलिए मैंने वो रिस्क ले लिया. सेम इज द रिस्क विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. यस एग्जैक्टली, इट्स अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट. आई मीन मैं वही आपको अभी पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया. व्हाई कोसी लॉ?
Sir, C law has been, I guess, the love since my law studies. Okay. As I said, I was in moot competitions, तो वहाँ पे अक्सर competitions जो थे वो constitutional law पे होते थे उनके questions. Okay. So in that pretext, constitutional law became one of my favorite subjects. Did it give you good marks? Sir, no. Yes, but And I'm very much sad that it did not, because I loved my paper. Yeah, I know that. Look, it's not your fault or anyone's fault. It is system fault. Exactly. That there are certain subjects where are very low scoring. From a person like you, I know you, that you did not deserve such low marks, but it happens. जैसे अभी आपने देखा होगा इतने सारे बच्चों को उन्होंने फेल कर दिया इंटरव्यू के अंदर जो डिजर्व नहीं करते थे, तो उन्होंने कर दिया, तो वो सिस्टम के फ्लॉग में आ जाते हैं. अच्छा, अब आते हैं आपका जो है ना चॉइस ऑफ फॉरेन सर्विस की तरफ. यूजुअली देखा गया दैट के गर्ल्स डू नॉट प्रेफर फॉरेन सर्विस. आपने प्रेफर क्यों किया? Sir, foreign service is an exceptional service, and yes, it is a different one especially from PAS and PSP, and especially from the culture जो पाकिस्तान में prevalent है. मैं वो तो बिल्कुल ठीक है बात करी, लेकिन मैं गर्ल्स का पर्सपेक्टिव से बात करूं, बिकॉज गर्ल वांट टू लिव इन कि पाकिस्तान में रहना चाहती हैं. मैं आई वांट टू गेट एन आई वांट यू टू गिव सम इंस्पिरेशन टू द गर्ल्स हु आर एस्पायरिंग दैट कि वो दे शुड गो बियॉन्ड दैट, वो जो क्लचेस है ना हमारे, जो बाउंड्रीज हैं, वो ग्लास सीलिंग को तोड़ने में उस हवाले से बात कर रहा था. Sir, in that perspective, I believe women should have the world, and especially in that pretext, हमें अपने आप को bound नहीं करना. I am from Burewala, sir. Okay. And now, through foreign service, I will be seeing the world. Yeah, representing Pakistan. Represented Pakistan, sir. Yes, exactly. और फिर आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे that you also told me that you are not the one that who is going to get afraid of the culture from the courts. आप कोर्ट कल्चर से भी जो है ना वो अफ्रेड नहीं है, क्योंकि हम दोनों को पता है कि गर्ल्स स्पेशली व्हेन दे कंप्लीट लॉ एंड व्हेन दे हैपन टू गो टू द कोर्ट्स, उनको लगता है कि यार ये तो हॉल ही नहीं है, आई कैन नॉट सर्वाइव. तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? Sir, you have to be strong enough. World is moving fast, and it is moving away from the gender bias. True. And you have to acknowledge that fact. आप अब अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं और हमने जो अगर फ्यूचर में जाना है, तो we do not have to focus on the aspect कि जेंडर क्या है. You have to focus on the aspect कि कैंडिडेट क्या है. जैसे हमसे इंटरव्यू में वो बैठ के वो ये नहीं देखते कि आप मेल हैं या फीमेल हैं. वो आपकी कैलिबर देखते हैं, वो आपकी एबिलिटीज़ देखते हैं. एंड दैट इज़, आई बिलीव के दैट इज़ अ लेसन कि यू शुड कम फॉरवर्ड एंड लुक एट योर ओन एस्पिरेशंस. इफ़ यू वांट टू गो देयर. इफ़ यू वांट टू गो टू द कोर्ट्स में जाएं. आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करें. आई वांटेड टू बी दैट, सर. मेरी मदर इसके अगेंस्ट थी, सर, पर my father was very much happy that I was joining him. But now they both must be happy. They're very happy, sir, and I am alhamdulillah they must for that, be very sir. proud of you as well. Alhamdulillah, sir. I'm also proud of you. That's all from Rida Ahmed. She's an inspiration for the girls. That okay, the takeaway from this interview is that rise above the gender biases. If you're a girl and if you're a boy, whatever you are, whatever capacity you are, believe in yourself and go beyond the boundaries. That is all from my side. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.